One, do you face problem in speaking English? Like for example, can you understand English when someone speaks to you? Can you understand English movies, videos or lectures? Can you read English quite well, but when it's your turn to speak, you suddenly forgot everything? Well, if yes, then no problem. Don't worry. You are not alone and you are on the right channel. The good news is that your problem is not that you don't know English, your problem is that you don't practice speaking English enough. So, in today's lesson, you why you understand English but cannot speak it, and more importantly, how you can improve your English speaking skills. So, let's begin. The first rule is that understanding English and speaking English has really much the different skills. Like for example, we have the listening and reading, then we have speaking and writing. Listening and reading are the receptive skills, which means these skills are used when you are receiving something from someone else. But speaking and writing are productive skills, and these both skills are used when you use to practice, you use to run your mind, you use to speak by yourself. For example, you may understand this sentence: I have been waiting for you for an hour. But you understand what the speaker means. But if you ask, what have you been doing? Now, here it is a confusing point. What have you been? Because you have to speak here. You have to give answer of this question, that what have you been doing today? Right? So for that you need the speaking skill or the writing skill, the productive skill, and this is the major confusing point for you all. So no need to worry. Why can't you speak English? The answer of the previous slide is here. There are the several common reasons that why you can't speak English. Reason number one: fear of making mistakes. This is the most common problem, right? And many students think, what if I make grammatical mistake? Right? Remember, mistakes are natural and part of learning. Remember one thing right now, because we learn by improving the mistakes. So if you wait until your English is perfect before speaking, and like I can't speak because my grammar is not perfect, so I think that you are failed here, right? You are not failed that you are not speaking, but you are failed here that I can't speak because my grammar is not perfect. So reason number two, you translate everything. So basically, अगर मैं simple words में आपको समझाऊँ, when we used to speak, we don't need to translate each and every single word in English, right? For example, you think in your native language first and then translate everything in English. So this is the wrong pattern, right? Your native language could be any language else. Then you are thinking in native language and then you are translating into the English. A most affording point here, right? For example, मुझे भूख लगी है. You first think of sentence is in Urdu, Hindi, Sindhi, whatever else, and then try to translate it. Instead, train your brain to directly think, I am hungry, I am starving. राइट. एनर एग्जाम्पल, मुझे नींद आ रही है. ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड. अब इसको एक एक वर्ड को ट्रांसलेट नहीं करो, सिंपल कह दो आई एम स्लीपी, राइट? आई फील स्लीपी, दैट्स इट. जब हम एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं ना इंग्लिश में, तो फिर वो आपका एक अलग ही सेंटेंस बन के आता है, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम. नेक्स्ट रूल यू हैव, लर्न सेंटेंसेस नॉट जस्ट वर्ड्स. जैसे कि कभी कभी हम छोटे छोटे वर्ड्स को सीखते हैं, जैसे कि वाटर, ड्रिंक, स्लीप. तो ये वर्ड्स ना सीखें आप. जब एक वर्ड का आपको पता चल गया है तो उसका सेंटेंस बनाए. जैसे कि सपोज़ यू लर्न द वर्ड हंग्री. अब सिंपल आपने कहा हंग्री, तो अब उसकी जगह पे आप कह सकते हैं आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ, राइट? सो आई एम हंग्री. आप ये भी कह सकते हैं सिंपल. एक वर्ड को आप सेंटेंस में कन्वर्ट करें. अब उसके भी कुछ बेसिक रूल्स. Yes, here you can see, learn some basic speaking patterns. You don't need to understand the hundred of complicated grammar rules to speak English, definitely, right?
आप 100 इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूल्स आप सीखेंगे तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे. जस्ट सिंपली स्पीक अप. राइट. पैटर्न नंबर 1, आई एम प्लस एडजेक्टिव. अब आई एम एक बेसिक वर्ड है जो सबको पता होता है. आई एम यानी कि मैं. राइट. आई के साथ एम लगता है. आई एम यानी कि मैं. अब उसके साथ आप एडजेक्टिव का यूजेज कर देंगे, जैसे कि हैप्पी, टायर्ड, नर्वस, कंफ्यूज्ड, एक्साइटेड. ये सारे एडजेक्टिव हैं, ये सारी क्वालिटीज़ हैं. तो आई एम के साथ किसी भी एक क्वालिटी को आप मर्ज कर देंगे तो आपके पास एक सेंटेंस बन जाता है, जैसे कि आई एम सैड, आई एम अपसेट, आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम एक्साइटेड, आई एम हैप्पी, आई एम नर्वस, आई एम टायर्ड. तो आप जब ये यूज़ करेंगे तो एक सेंटेंस सिंपली आपके पास बन गया. ये तो डेली रूटीन में आपके पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं. राइट. पैटर्न 2 क्या है? आई वॉन्ट टू. अब कभी कभी हमें ये भी लगाना होता है आई वॉन्ट टू. उसके साथ आप सिंपल एक वर्ब का यूजेज कर दें. वर्ब यानी कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शन. राइट. आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. बेसिकली सबका यही प्रॉब्लम. आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई स्पीकिंग. I want to become a teacher. I want to become a doctor. Right? Every profession you can have. So you can say I want to plus verb. यहाँ पर आप I want to के साथ किसी भी verb को लगा देंगे तो enhancement हो जाएगी and एक beautiful सा sentence and simple सा sentence आपके सामने आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास? आई हैव टू प्लस वर्ब. पीछे आपने आई वॉन्ट टू कहा, अब यहाँ पर है आई हैव टू. आई हैव टू का मतलब कि वो चीज़ जो आपको करनी ही है. कभी कभी हम ये कहते हैं ना, नहीं मुझे तो ये करना ही है. कभी कभी हम कहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आई वॉन्ट टू आ गया, करना चाहता हूँ, जो प्रीवियस स्लाइड में आपने पढ़ा. पैटर्न नंबर 2. पैटर्न 3 में क्या है? आई हैव टू मतलब एग्जाम्स आर नियर सो आई हैव टू स्टडी. राइट. एग्जाम्स आपके नियर हैं एंड आपको पढ़ना है, सो आई हैव टू स्टडी. आई हैव टू गो होम बिकॉज इट्स ऑफ टाइम नाउ. इट्स 2 PM नाउ. आई हैव टू कंप्लीट माई असाइनमेंट. पैटर्न 4 क्या है? आई थिंक प्लस सेंटेंस. किसी को सोचते हैं, सजेशन देते हैं, किसी को डाउटफुल कोई सिचुएशन है किसी की, उसको क्लियर करते हैं, तो उसके लिए या कोई आइडिया सोचते हैं उसके लिए आप आई थिंक का यूजेज करते हैं. तो आई थिंक इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट. राइट. आई थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया. आई थिंक वी शुड प्रैक्टिस मोर. राइट. पैटर्न 5 आई लाइक. जैसे कि आप अपने लाइक्स डिसलाइक्स सोचते हैं, समझते हैं, या किसी को शेयर करते हैं, बताते हैं, कोई पूछता है तो उसको आंसर करते हैं. तो वो आंसरेबल होने के लिए व्हाट यू हैव टू यूज़ योर सिंपली आई लाइक के साथ कोई नाउन या फिर वर्ब, उसके साथ ING फॉर्म लगा दें. जैसे कि आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है. आई लाइक वॉचिंग मूवीज़, मुझे मूवीज़ देखना पसंद है. आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट. आई लाइक टेबल टेनिस. राइट. तो कुछ भी कर सकते हैं. आई लाइक लर्निंग इंग्लिश. वॉट इफ़ यू डोंट नो अ वर्ड? अगर आपको एक वर्ड का ही नहीं पता तो सेंटेंस कैसे बन सकता है? अगेन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स नॉट अ बिग डील. ऐसा होता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर हेजिटेशन या फिर कोई और प्रॉब्लम, या बेस क्लियर नहीं है आपका, बेसिक नहीं बना हुआ, फाउंडेशन नहीं सेट इंग्लिश की, तो आपको एक वर्ड भी नहीं बोलना आता, तो मैम तो हमें ये कह रही हैं कि आप पूरा पूरा सेंटेंस बोलें, वर्ब एडजेक्टिव लगा दें. नहीं, तो वर्ड नहीं आता, इट्स नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग प्रॉब्लम. सपोज यू डोंट नो द इंग्लिश वर्ड ऑफ अम्ब्रेला. अब आपको अम्ब्रेला, छाता, यानी कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको नहीं पता, कि छाते को अम्ब्रेला कहते हैं. ठीक है. तो आपने डोंट स्टॉप स्पीकिंग. आपको वहाँ पर बोलना बंद नहीं करना है. यू डोंट नो कि मुझे तो नहीं पता है तो अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बट यू हैव टू स्पीक स्टिल. यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको बोलना है पर आप बोल नहीं रहे क्योंकि आपको वर्ड का नहीं पता. तो इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग योर सेल्फ आप ये कह सकते हैं आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड बट इट इज़ समथिंग वी यूज़ व्हेन इट रेन्स. यहाँ पर आपका एक सेंटेंस भी बन जाता है एंड आपकी क्लैरिफिकेशन भी हो जाती है कि आप यहाँ पर एक वर्ड कहना चाहते हैं जो कि है अम्ब्रेला. तो वो जो जिसको आप कहते हैं वो समझ जाएगा कि यहाँ पर ये थोड़ा सा अभी वर्ड को भूल गया है, बट ही नोज और शी नोज दैट हाउ टू स्पीक. यूज़ स्पीकिंग फिलर्स. अब स्पीकिंग फिलर्स क्या होते हैं, फाइलर्स क्या होते हैं? ये कि आपके पास समटाइम्स यू नो द आंसर बट यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट.
इट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम आई थिंक। कभी कभी हमें पता होता है बट आंसर कैसे दें, क्या दें, वी डोंट नो। सो वहाँ पर कंफ्यूजिंग पॉइंट होती है, आई नो, पर वहाँ पर आप कुछ वर्ड्स का यूजेज कर सकते हैं, या कहीं पर आप प्रेजेंटेशन देते वक्त आप स्टक हो गए कि आप क्या कहना है, तो वहाँ पर आप पॉज लेके आप कह सकते हैं, वेल आई थिंक इन माई ओपिनियन, और एक्चुअली लेट मी थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट एज फॉर एज आई नो। फॉर एग्जाम्पल, क्या है आपके पास, इफ़ समवन आस्क व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोशल मीडिया, अगर कोई पूछता है कि सोशल मीडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, राइट। तो इस तरह से आप वर्ड्स को, अपनी गैप्स को फिल कर सकते हैं। जब हमें एग्जैक्ट कुछ पता नहीं होता या कोई गैप आ जाता है, उसको आप फिल ऐसे कर सकते हैं स्पीकिंग में। जैसे कि आपको इंग्लिश अगर सीखनी है, आप ईगर हो इंग्लिश लर्न करने के लिए, तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए एवरी डे, प्रैक्टिस स्पीकिंग एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू नो वेरी वेल एंड यू ऑल नो वेरी वेल, you cannot improve speaking without speaking, simply, right? You don't need to speak English for 3 hours every day. You are thinking you are pressuring your mind. No, 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 please don't. English is not a medicine. It's a simplest and beautiful language. It's an international language which you just have to speak. You just have to try to speak, and that's it. You don't need to speak English for 3 hours every day. It's not like that. Start just 5 minutes a day. Choose a simple topic, जैसे कि my daily routine, my family, my favorite food, my best friend, my favorite teacher, my college, my hobbies, my future plans। कोई भी सिंपल सा टॉपिक आप चूज़ करें डेली, एंड 5 मिनट्स के लिए उस टॉपिक को राइट करें एंड देन उसको स्पीक अप करें। तो डेली जब आप ये करेंगे, स्टिल डेली नहीं कर पाते, टाइम इशू है, यू कैन डू इट इन अ वीक, वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक, तो आपकी स्पीकिंग बहुत बेटर हो सकती है। 1 मिनट स्पीकिंग चैलेंज। अब ये एक एक्टिविटी होती है सिंपली, जो कि अभी आपको करनी है। अब कैसे करेंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। अब यहाँ पर क्या है, जो ये एक्टिविटी मैं बेसिकली अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ करती रहती हूँ, जिसमें कोई भी एक टॉपिक दे दें या फिर आप कहते हैं दैट स्पीक फॉर 1 मिनट और 2 मिनट अबाउट यूर सेल्फ, तो वो नॉन स्टॉप अपने बारे में कुछ ना कुछ बोलता जाएगा। जैसे कि आपके पास टॉपिक है माई फेवरेट टीचर। अब माई फेवरेट टीचर, अब यहाँ पर मिस या फिर मिसेज अहमद है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, शी टीच अस इंग्लिश। यहाँ पर आप मेरा नेम लिख सकते हैं, सिंपली आई लाइक हर बिकॉज शी इज़ वेरी काइंड एंड सपोर्टिव, शी ऑलवेज इनकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन क्लास। तो ये अब सिंपल सा है टॉपिक है, जो कि आपको 1 मिनट में बोलना होता है, राइट। ठीक है, एंड प्लीज़ रिप्लेस द मिस अहमद हियर, थैंक यू। यूज़ द प्रेप फार्मूला। अब यहाँ पर आप एक प्रेप फार्मूला है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके PREP, प्रेप फार्मूला, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखें। जैसे कि P स्टैंड्स फॉर पॉइंट, R स्टैंड्स फॉर रीज़न, E स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पल, एंड देन अगेन P स्टैंड्स फॉर पॉइंट। व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू से, यूज़ दिस सिंपल फार्मूला। जब आपको नहीं पता कि बोलना क्या है, तो एक और सिंपल मैंने चीज़ लिखी है यहाँ पर, ये फॉर्मूला यूज़ करो। पॉइंट क्या है, गिव योर ओपिनियन, ठीक है, पॉइंट है आपका गिव योर ओपिनियन। रीज़न क्या है, गिव अ रीज़न, यानी कि यहाँ पर आप अपना एक रीज़न दो, एक एग्जाम्पल सेट करो, फिनिश योर आंसर। एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन है इज़ रीडिंग